نے دو صفحے کہا تھا نا، جب تک دو صفحے پڑھتے سعودی صاحب نہیں، یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے، جب تک دو صفحے آپ پڑھیں گے نہیں تب تک بات نہیں بنے گی. ان آیات کو اگر کوئی شخص تامل اور غور کی نظر سے دیکھے تو میں کیوں کر کہوں کہ وہ اس بات کو سمجھ نہ جائے کہ خدا تعالیٰ اس امت کے لیے خلافت دائمی کا صاف وعدہ فرماتا ہے. خلافت اس وقت آئے گی جب نبی آئیں گے. آگے آگے نہیں نہیں خلافت اعلیٰ آگے نبوت کا مطلب ہے نبوت کے طریق پر. ہاں جی نبوت کے طریق تو پر. یہ زبردست. ایک آگے لائن پڑھ پڑھتے دیں ہیں سر اور امین صاحب باقی رک بھول جائیں، دو جاتے صفحے ہیں. پڑھے جائیں گے، دو صفحے پڑھے جائیں گے. جی سعودی صاحب آگے. اگر خلافت دائمی نہیں تھی تو شریعت موسوی کے لیے خلیفوں سے تشبیہ دینا کیا معنی رکھتا تھا؟ اور اگر خلافت راشدہ صرف 30 برس تک رہ کر پھر ہمیشہ کے لیے اس کا دور ختم ہو گیا تھا، مطلب کہنے کا ہے کہ یہ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا تا قیامت. جی 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 تو جی آپ نے وہ ایک 30 لائن سال پڑھ تک کے کہہ محیط نہیں دیا تھا جی. قیامت تک. آگے ہاں جی آگے چلیں، آگے چلتے رہیں، آگے چلتے رہیں. اگر خلافت راشدہ صرف 30 برس تک رہ کر پھر ہمیشہ کے لیے اس کا دور ختم ہو گیا تھا تو اسے لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس امت پر ہمیشہ کے لیے ابواب سعادت مفتوح رکھے، کیونکہ روحانی سلسلہ کی موت سے دین کی موت لازم آتی ہے جو آپ کرتے ہیں کہ جی جی دین کی آگے موت آگے. ہوگی، نبی نہیں آنا نہ خلافت آنی ہے. ہاں جی جی تو جی سر آگے اتنا پڑھنے کی آگے. ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ گئے بات کو. نہیں 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 سعودی صاحب نہیں، آپ نے بات کی ہے. سعودی صاحب میری بات سنیں، آپ نے بات کی سر تھی دو آپ صفحے، امت کو جو دیکھیں سعودی صاحب، موت دے رہے سعودی ہیں صاحب کیا میں یہ سمجھوں کہ دو صفحے والا صرف چورن اور لالی پاپ ہوتا ہے؟ آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں پھر؟ سر پوری کتاب پڑھیں، میں تو یہ کہتا ہوں پوری کتاب پڑھیں. پوری کتاب نہیں، آپ نے دو صفحے کا بولا ہے پڑھیں، جب تک وہ بات نہیں آتی جو میں نے ثابت کیا آپ کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا مطالبہ ہے، میرا وہ نہیں جو ہے. پڑھیں. مرزا صاحب ہیں حضرت مسیح موعود، وہ اس بات کو ان نگیٹ آیات کر رہے ہیں جی کہ ایسا نہیں ہونا آگے چاہیے. اس سے آگے پڑھیں، آگے پڑھیں، لازم آتا سن ہے. لیں جی کیونکہ روحانی سلسلہ کی میوٹ ہو گیا آپ کا، میوٹ ہو گیا. میوٹ کھول لیں. کس نے کیا میوٹ؟ میرا ان سے کوسچن ہے کائنڈلی اگر آپ مجھے اجازت دے تو. ایک ہاں منٹ لیتے ہیں، آپ کا کامل سوال لیتے ہیں. جی لیتے ہیں، سوری سر وہ میرا فون بیچ میں آ رہا تھا یار. کوئی بات نہیں. آگے آپ دیکھیں اس نہیں میں نہیں بڑا پڑھیں، کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے. پڑھیں. نہیں نہیں کلیئر کٹ آگے. دو صفحے آپ نے کہا تھا، دو صفحے پڑھنے ہیں. میں دو پڑھ صفحے دوں، سے میں پہلے پوری کیسے کہہ بک سکتے ہیں پڑھ کلیئر دوں گا کٹ پر لکھا ہوا آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. نہیں نہیں میرا ٹائم نہیں ضائع ہوتا، صرف دو صفحے پڑھنے ہیں سن لے کیونکہ پھر آپ چلیں، دو اگر دو آپ لائنیں تیار پڑھ کے بیٹھے ہیں میرے بھائی، آپ ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں. سنیں پھر. اور ایسا مذہب ہر کی زندہ نہیں کہلا سکتا جس کے قبول کرنے والے خود اپنی زبان سے یہ اقرار کریں کہ 1300 برس سے یہ مذہب بھرا ہوا ہے کہ نبوت بھی کوئی نہیں آنی، خلافت بھی کوئی نہیں آنی. تسی کہتے ہو. چلیں چلیں. اور خدا تعالیٰ نے اس مذہب کے لیے ہرگز ارادہ نہیں کیا کہ حقیقی زندگی کا وہ نور جو نبی کریم سے سینہ میں تھا وہ توارث، مطلب وہ وراثت کہہ لے، وہ توارث کے طور پر دوسروں میں چلا آوے. افسوس کہ ایسے خیال پر جمنے والے خلیفہ کے لفظ کو بھی جو استخلاف سے مفہوم ہوتا ہے تدبر سے نہیں سوچتے، کیونکہ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو. اور اس واسطے رسول کریم نے جو چاہا کہ ظالم بادشاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو، کیونکہ خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے. یہ ہے ذلی جو آپ سمجھتے نہیں ہیں. زبردست زبردست. یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب یہاں خود کو خلیفہ کہہ رہے ہیں نا. آگے بڑھیں. جی بہرحال وہ نبی ہیں سر، وہ خلیفہ بھی نبی نہیں ہوتا ہے. نہیں آپ نے خود کہا. نہیں لیکن خلافت کا جب مضمون آئے گا تو وہ خلافت علی منہاج نبوت آئے گی نا. نہ اب آپ دیکھیں آگے پڑھتے جائیں. اب آپ نے دو صفحے پڑھنے ہیں کیونکہ مسئلہ حل ہو گیا کہ مرزا صاحب خود کو نبی یہاں کہہ رہے ہیں کہ رسول کا خلیفہ کہہ رہے ہیں، ذل کہہ رہے ہیں. آپ بات کو ٹویسٹ کرتے ہیں میرے بھائی، چھوڑ دیں. نہیں کر رہا. دو صفحے پڑھیں میں نا. زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. خدا نے کہا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا بالکل. آپ چپ کر جائیں گے. نہیں پڑھنے دیں امین صاحب، آپ کریں بات ان سے کیونکہ میں بحث نہیں کر سکتا یار. آپ نہیں سعودی صاحب دو صفحے آپ نے کہا تھا، کیا ہوا ہے؟ تھک گئے یار میں تو پوری بک پڑھ دوں گا پر فائدہ کوئی نہیں. امین صاحب آپ کریں بات. پڑھ دیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ دیں. سعودی صاحب پڑھیں. سعودی صاحب پڑھیں. اچھا جی، یہ اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو صرف ایسے ہی کہتے ہو؟ نہیں سر، میں تو آپ کو بتانے آیا ہوں سر، میں تو آپ کو تو بتائیں پھر. دو صفحے پورے پڑھیں گے بات بنے گی. ایسے نہیں. خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسول کے وجود کو جو دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولا ہیں ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رکھے. جی جی جی. تو اسی وقت خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانہ میں برکات رسالت سے مرحوم نہ رہے.
बस जो मैं खिलाफत को मैं आपको आपकी तरफ आगे आगे चलने दें भाई चलने दें, मामला हल होने लगा है। खाक साहब बात सुने मेरी एक मिनट, मैं किंग साहब से मुखातिब हूँ। देखिए जी बात यह है कि आप बाद में भैया, आप बाद में होना ना मीन साहब, आप बीच में वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? 2 सफ़े पढ़ने देना। ओ भाई खैर क्यों जाए सफ़ा भाई, भाई टाइम ना ज़ाया करें, अच्छा नहीं लगता। खलीफा जो है ना, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल, खलीफा से क्या मुराद लेते हैं? जी जो ये छोड़ें आप सब कुछ, छोड़ें आप इबारत पढ़ने दें, जो 2 सफ़े के हुए थे पढ़ने दें। आप मिर्जा साहब से ज्यादा नहीं है, मिर्जा साहब के पढ़ने दें। मैं आप, मेरा वादा है मैं आपको 4 सफ़े पढ़ के सुनाऊंगा। बात नहीं सुन आप छोड़ें, आपसे कोई बात ही नहीं है, आप छोड़ दें। आप अभी सिर्फ अपना सवाल, आप अपना सवाल तरतीब दें, मुझे सऊदी साहब से बात करने दें, सऊदी साहब से बात करने दें। मेरे सऊदी साहब से ही बात कर रहा हूँ। वो सऊदी साहब सामने आओ, हाँ जी 2 मैं सफ़े पढ़ रहा, मैं पढ़ने पढ़ना जी, पढ़ो ना, फिर इन्होंने चुप कराओ ना। है कि जो खलीफा है आप उस तरह ये तरीका कार है कि एक बंदे के साथ 2 बंदे और रास्ता म्यूट चली ना थी, करें और बात भी ना सुने और तरीके से बात भी ना करने दें। चली थी 2 सफ़े चलने दें। बात जो चली थी वो खिलाफत रास्ता चली थी, और जो पेश गोई है जो खिलाफत आला मनाज नबूवत, जो पेश गोई है वो खिलाफत आला मनाज नबूवत की है। इस बात को ज़हन में रखें। 2 सफ़े पढ़े जाएंगे, गल नहीं पढ़ देन लज्जो जी, मैं पढ़न देना, फिर जे पीछे पे रहे तो फिर पढ़न दियो। पढ़ो और किसी वक्त जमाना जाया में कर देने विच बोलते बरकातेर इन्हीं सालत 2 से सफ़े पढ़े भी जाने सन, हर बंदे फिलासफर बने हैं। दुनिया कभी किसी और किसी जमाना में बरकातेर सालत से मरहूम ना रहे। रिसालत किन्हों कहते हैं आप बताएं ना जी, जरा रिसालत किसे कहते हैं? रिसालत नहीं कहा जा रहा, बरकाते रिसालत कहा जा रहा है। उर्दू पूरी पढ़ो आगे हाँ चलो। बरकातेर रिसालत किसे कहते हैं आप? जी जिल्ली खलीफा को जी। ना 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 ना, रिसालत नबूवत पीछे होती है भाई, क्या आगे बात कर पढ़े रहे ना, हैं यार? इसलिए कह रहा हूँ आगे पढ़ने देना मुझसे। भाई रिसालत नबूवत होती है मेरे प्यारे भाई। अभी ये भी बताना पड़ेगा कि रिसालत जो है ना, अब इनको इतने बड़े पढ़े लिखे मौलवी हैं यार, ये इनको रिसालत का नहीं पता। अभी ये भी बताना पड़ेगा। और रिसालत नबूवत होती है मेरे प्यारे भाइयों। बड़ी मेहरबानी, खिलाफत में भी फर्क होता है, खिलाफत आला मनाज नबूवत में भी हमेशा फर्क होता है। आप लोग मिर्जा साहब की इबारत नहीं, इसका मतलब है जब कभी को बंदा कहे, दोस्तों समझ जाना, जब कभी को बंदा कहे ना 2 सफ़े आगे, उसका मतलब है ऐसी बहस करनी है, इतनी आपको पढ़ाने का शौक है तो पाकिस्तान में क्यों बैन की हुई है? पाकिस्तान में जरा खोले ना। इसका मतलब साफ तौर पर ये है कि ये लोग सिर्फ लॉलीपॉप और चूरन बेच रहे हैं। किताब आपके सामने है भाई मेरे, और उसमें रिसालत लिखा है, नबी का लिखा है। आगे पढ़ें, आगे पढ़ें, किताबों पे चलने देना। इसका मतलब है साफ पता चल रहा है कि आप वहाँ पे भी जरा खोले ना, वहाँ पे भी बंदी क्यों है? आज मैंने यार पब्लिक आप के सामने रिसालत को नहीं समझ रहे तो मैं आगे कैसे चलूं? रिसालत नबूवत होती है, रिसालत। बरकाते रसालत से महरूम ना रहे। पढ़ें पढ़ें आगे। बस जो शख्स खिलाफत को सिर्फ 30 बरस तक मानता है कि नबी के बाद रिसालत पहले आएगी फिर खिलाफत आएगी, वो कहते हैं ये ऐसा नहीं है। कुरान की आयत सूरत खिलाफ जो है वो इस बात को बयान कर रही है कि जब भी आपने इबारत पढ़ें, हाशिया ना लगाएं। बस जो शख्स खिलाफत को सिर्फ 30 बरस तक मानता है, इसका मतलब है खिलाफत जो है वो ना 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 ना, पहले रिसालत का जिक्र है, पहले रिसालत का है, बरकाते रिसालत से महरूम ना रहे। अच्छा पीछे पहले पीछे नबी एक मिनट। फिर खिलाफत। हाँ बरकाते रसालत से महरूम ना रहे, यानी मिर्जा साहब जो हैं वो रसूल थे या खलीफा थे? वो रसूल थे, नबी थे। हाँ जबरदस्त। अब इस पैराग्राफ से साबित करना है कि मिर्जा साहब ये इस्तदलाल रसूल पर कर रहे हैं या रसूल के खलीफा पे कर वो रहे हैं। कहते हैं कि नबूवत जारी है, रिसालत जारी है और खिलाफत भी जारी है ता क़यामत। किधर लिखा है, किधर लिखा है? यही तो बता रहे हैं, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। दोबारा कोई किसी जी शूर अक्लमंद आदमी से पूछे जाके भाई मेरे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ कि सुने, मैं दोबारा पढ़ता हूँ भाई आपके लिए। हाँ पढ़े पढ़े पढ़े। खुदा ताला ने खिलाफत को तजवीज किया, यानी कि नबी नबूवत पहले है, रिसालत का जिक्र कर दिया। पढ़ रहे हैं किधर से? वही दोबारा पढ़ रहा हूँ, दोबारा वही लाइन पढ़ रहा हूँ। खुदा ताला ने खिलाफत को तजवीज किया ता दुनिया कभी और किसी जमाना में बरकाते रिसालत यानी कि बरकाते नबूवत से मरहूम ना रहे। जबरदस्त जो शख्स खिलाफत को सिर्फ 30 बरस तक मानता है वो भी नादानी से खिलाफत की लड़ाई को नजरअंदाज करता है। भाई स्क्रीन जरा बड़ी कर दें, ये हवाला लगा देता हूं मैं यहाँ पे। सऊदी साहब आप गलत ना यार किया करें। आमर हक भाई आप पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे, लेकिन ऐसे ना किया करें मेरे प्यारे भाई। सऊदी साहब रौला नहीं अहमद ओपल भाई जरा स्क्रीन बड़ी कर दें करना। ये साहब आप मौजूद हैं, स्क्रीन बड़ी कर दें। पढ़ें खुदा ताला ने ये दोबारा पढ़ें जरा जुमला, तीसरी लाइन जो है लास्ट वाली दोबारा पढ़ें। फिर पढ़ो दोबारा। हाँ दोबारा पढ़ें। और ओके सुने, ओके। और खुदा ताला ने खिलाफत को तजवीज किया ता दुनिया कभी और किसी जमाना में भी बरकाते रसालत यानी बरकाते नबूवत से मरहूम न रहे। अब रुकें आपसे एक सवाल है। खुदा ताला ने बरकाते रसालत से महरूम ना रहने के लिए किस चीज को तजवीज किया? रसालत को, नबूवत को, या किसको?
दोनों को। जो आप कुरान पढ़े फिर जाके कुरान की आयत किधर पढ़ लिखा लें है, वो। किधर किधर लिखा है, पता क्या लिखा हुआ है सौदी साहब, जुमला सुने, खुदा ताला ने खिलाफत को तजवीज, पता क्या मतलब है इसका, कि अल्लाह ताला ने खिलाफत को तजवीज किया। मिर्जा साहब कह रहे हैं खलीफा आएंगे, रसूल और नबी नहीं। नहीं 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 नहीं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। आप चुप जो कर जाए जरा, सौदी साहब से बात खिलाफत करने दे, आप चुप रहेंगे खिलाफत मेरा भाई, आला आप मनाज चुप रहेंगे, नबूवत, आप चुप नबूवत जो रहेंगे। है ना, नबूवत के तरीक पर, अमीन भाई, नबूवत के तरीक पर खिलाफत अमीन बनती साहब, तब है जब नबी आता है, अमीन खिलाफत साहब, मिलती अमीन तब है जब साहब, नबी आता है। अमीन साहब, नबी अमीन साहब, नबी जब मैं आता है अमीन तब भी साहब खिलाफत आपके साथ होती भी है। बात हो सकती है, आपके साथ भी बात हो सकती है, मगर किसी उसूल के तहत। तो सऊदी साहब को सामने पहले लाए ना, जिन्होंने उस सवाल पे एतराज किया है। सऊदी साहब आपके का साथ फोन अगर आया बात, ना पीछे, इसलिए आपने मैं अगर बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, अब अब फिर चुप बात कर यह दें, है कि जो आपने अगर बात, आपने बात खिलाफत करनी है, आला मनाज नबूवत आपने की बात जो करनी पेश है, गोई है, आपने बात मैं करनी बात है, कर रहा हूँ आपसे। बात आपने यह करनी है है, कि जो बारी बारी खिलाफत बात आला करेंगे, मनाज नबूवत बारी का, बारी बात खिलाफत करेंगे। आला मनाज अभी नबूवत। रुकें रुकें, चीज़ें तय होंगी, रुकें, तय होंगी चीज़ें। आपने जी बात करनी करें, है ना, फिर अब आप, फिर अब हाँ जी सऊदी तो नहीं करते बोलेगा हैं, बीच में। करें बात करें। तो अहमद आप ओपल भाई अकेले वन आप टू वन, मौजूद हैं? एक आप मिनट ठहरे आमिर आप हक वन टू वन साहब, मेरे से बात मुझे करोगे। मॉडरेट दें एक, तो मुझे एक मॉडरेट का दें, ठीक है। और अहमद ओपल भाई या भट्ट साहब जो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया हूँ, मैं अब बात आगे जारी सर करता हूँ। अच्छा जरा भट्ट साहब मुझे जो है ना मॉडरेट बना दें, या फिर नीचे जो बकवास कर रहे हैं ना उनका उनको मुंह नीचे बंद को करें छोड़ें जरा, यार, इसने एक ही रोना ये डाला हुआ है, मुझे या नीचे कमेंट्स ले को गए, बंद ऊपर कर ले दें। गए। मैं जाने लगा हूँ यार सिर्फ एक मैनू पता बात नहीं की करके। कुछ कह रहे हाँ हैं, जी हाँ मैं जी। हूं थले ध्यान भट्ट रखा, साहब बच्चे मैंने ना एक करा बात करनी है। गल करन आ जाते ने, वो छुई जो मार इन्होंने दी। हवाला दिया ना, अजीम भट्ट साहब, इन्होंने तोड़ मरोड़ के एक लाइन बता दी, मैंने दो पेजेस पढ़े हैं, उसमें कोई लिखा नहीं है कि पढ़े, दो नबूवत पेजेस आएगी और पढ़े, खलीफा भी दो आएंगे। पेजेस पढ़े हैं, एक पेज के ऊपर धुआं निकल तो गया। ये आपको अजीम ना भट्ट साहब, ये धोखा अजीम भट्ट देता है साहब भाई जो तरतीब है, बनाएं, ये गलत अजीम बयानी भट्ट साहब करता है। मैं यहाँ कोई जा रहा हूँ तरतीब बस, बनाएं, मेरे अगर पास बात टाइम करनी नहीं है इस है। पेज के ऊपर, वरना मैं फिर निकलता हूँ, वक्त का ज़ाया। मैं इसलिए बैठा था कि ईमानदारी का तकाजा ये था कि मैं बैठता और बात पूरी करता, ठीक है। हाँ जी, आप अगर मैं आपने आ बात गया हूँ। आप करवानी है, मुझे नहीं पता पीछे क्या आप कैसे बात कर रही है, लेकिन अब आप करें, मैं मैं हूँ इधर। चले, मैं अजीम भट्ट साहब मुझे मौका दे, मैं आपको समझाता हूँ। दो लोग हैं, दो लोग हैं, सऊदी है यार, ये म्यूट करें इनको, बाबर महर साहब को, बाबर महर साहब को म्यूट करें। और सऊदी निकल गया आज टाइम सर, उन्हें क्या निकलो टाइम, बाबर महर साहब को म्यूट करें। और सऊदी निकल गया आज टाइम सर, उन्हें क्या निकलो टाइम सर, जान छुड़ाओ। अच्छा बहुत शुक्रिया। अच्छा अजीम भट्ट साहब, इस वक्त मेरे सामने एक बंदा है, सऊदी साहब तो चले गए हैं, अमीन साहब मौजूद है, इनके पीछे से भी शोर आ रहा है। माइक म्यूट करें अमीन साहब एक मिनट। हाँ अजीम भट्ट साहब, अमीन साहब से बात होने लगी है रूहानी खजान वॉल्यूम 6 पेज 355 की इबारत के ऊपर। इन्होंने 2 सफ़े पीछे, बल्कि 3 सफ़े पीछे 352 से इबारत शुरू करनी है। मेरे साथ इनकी बात का आगाज़ होने लगा है। अब अमीन साहब और मैं बात करेंगे। अजीम भट्ट साहब, आपने किसी दूसरे बंदे को बीच में नहीं आने देना, क्योंकि ये मछली मंडी बन गई थी आपके अदम मौजूदगी में, और मैं नहीं चाहता आपकी ब्रॉड का माहौल खराब अच्छा हो। इसको जरा बड़ा कर अजीम भट्ट साहब, दें, आप बात तस्वीर करवाएंगे? को बड़ा कर दें। बड़ा करते हैं, रुके, मैं पहले कंफर्म कर दूं। अजीम भट्ट साहब बात करवाएंगे आप? जी लगाएं जी, भारत ये आ गई है, अब पढ़े जी। क्या हाँ, आपका पहले मुझे बताएं, आप दोबारा से जरा अपना, 352 हाँ जी अपना ना जरा वो पहले आप पे आपने दोबारा जाना और उसको आपने ना, पढ़नी शुरू करनी है। चले आप ना अपना जो आपका मुद्दा है ना इस वक्त भारत पे, हाँ। पहले वो दोबारा बयान कर दें। हाँ 352 पे जाना है, मेरा मुद्दा है 352 से 55 के ऊपर आना है। जिस बात के अंदर आपने जंप की थी ना, अब आप उसी पानी के अंदर मेरे साथ चलेंगे। 352 से ये है। 352 चलें जी, पढ़ना शुरू करें जहाँ से सऊदी किंग साहब को आपको तसल्ली नहीं थी और आप बीच पहले में आए आप थे। मुझे अपना मुद्दा बताएं कि आपका इख्तलाफ क्या है इस भारत में। हाँ, मैंने जो हवाला ये पेश किया था रूहानी खजान वॉल्यूम 6 पेज 355 पर अजीम भट्ट साहब की बात पर। अजीम भट्ट साहब ने यह मुतालबा किया कि अगर आप ख़त्म नबूवत मानते हैं तो फिर इमाम महदी की पेश गोई क्यों मौजूद है, या दूसरे उलमा बीच में क्यों आते हैं, ये सारे मामला। नहीं ये तो बात दूसरी होगी ना, जो आपने जो आपका मुद्दा था। फिर मुझे पूरा बोलने देना, मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट चले देना प्यारे भाई, करें। पूरा कॉन्टेक्स्ट दूंगा तो आपको पता चलेगा ना प्यारे भाई, आपने मांगा है मुझसे। मेरा मुद्दा ये था कि मिर्ज़ा साहब ने इस मसले का हल पेश किया। अगर कोई ये कहे कि आप ख़त्म नबूवत मानते हो तो फिर इमाम महदी कहाँ से आ गए, दूसरे तीसरे लोग कहाँ से आ गए, ठीक है जी, इनकी पेशगोइयाँ कहाँ से आ गई, तो उस पर मिर्ज़ा साहब ने यह हल पेश किया है कि देखो नबी तो इस उम्मत में आने से रहे, अब जो आएंगे ना वो खुलाफाए नबी होंगे, यानी नबी के खुलाफा होंगे, और वो वक्तन फ़वक्तन रूहानी करिश्मा दिखाया करेंगे, रूहानी निशान दिखाया करेंगे ताकि इस्लाम ज़िंदा रहे रूहानी तौर पर। ये बात, इससे मैंने इस्तदलाल किया कि मिर्ज़ा साहब इस चीज़ के कायल थे कि इस उम्मत में नबी आने से रहे, नबी नहीं आना, नबी के खुलाफा आएंगे, नबी नहीं आएगा। अब सऊदी साहब बीच में कूदे, उन्होंने आकर कहा भला आपने गलत दिया हुआ है। मैंने कहा जी क्या हवाला गलत दिया है? कहते हैं जी यहाँ तो मिर्ज़ा साहब नबूवत जारी होने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा दिखाएं कहाँ हो रही है? कहते हैं जी 2 सफ़े पीछे जाएं,
352 पर वो लेके गए। 352 से अब मेरा मुतालबा सुन लें, अमीन साहब ने, अजीम भट्ट साहब 352 से पढ़ना शुरू करना है और ऑनवर्ड 355 के ऊपर आना है और साबित करना है कि जो मैं दावा कर रहा हूँ मिर्ज़ा साहब की इबारत से क्या वही बात है या नहीं। ये है सारी बात। जी अजीम भट्ट साहब करवाएं बात ज़रा। जी, अब बात ये है कि मिर्ज़ा साहब का ये अकीदा था कि अब नबी नहीं आने। जी आमिर साहब मुझे ये बताएं कि मिर्ज़ा साहब का ये अकीदा था। 352 से 355 तक इबारत पढ़ी जाएगी। उस तरफ फिर मैं बात जाता आगे हूँ, बढ़ेगी। मैं उस तरफ जाता हूँ, उस तरफ जाता हूँ। मुझे ये बताएं, उस तरफ आप ही जाना इबारत ये है, मुझे पढ़ आप के जिस सुना बेस रहे पर हैं, कूदे हैं ना मुझे इस ये बात जो में। मैं 1 मिनट में ये बात खत्म कर दूंगा। मुझे ये बताएं कि हाँ, मिर्ज़ा साहब का 1 ये मिनट अकीदा में बात था नहीं खत्म कि होगी, अब इबारत नबी पूरी बंद होगी। है, नबी नहीं आने। क्या बात ये शुरू हुई थी? आपको पता है बात क्या शुरू हुई थी? आपने मुझे अब आपको पता है? मुखातिब किया ना सीधे तरीके के साथ। आपको आपने कहा कि मुखातिब मेरे मैंने साथ किया बात कि आप करें, तो बीच में बात छलांगे ये है मार रहे कि थे। बात जो है आप हैं? टू द पॉइंट मुखातिब करते किया हैं ना। है। शानपंथी चेक करो, आपने मुझे उन्होंने मुखातिब किया। कहा छाना कौन है मार ना रहा कि है? 2 आयतें, मेरी मेरे बात से सुन लेना सवाल अब। आपने पूछा, सऊदी ने पूछा था। आपने जो इतराज किया है इस इबारत पे, सवाल मुझसे आपने कहा सऊदी ने है, पूछा था या आपने पूछा था? मुझे मुखातिब किया मैंने है। आपको ये चोर कहा है नलोफंड कि गाली मुझे ये कौन सी? बताएं, मुझे बीच में ये तो आप कूदे बताएं हैं। कि मिर्ज़ा साहब का, मुझे ये बीच में तो बताएं कि आप मिर्ज़ा कूदे साहब हैं। का ये मिर्जा अकीदा साहब का था। कुछ भी अकीदा हो ना हो, जो इबारत मैंने पेश की है उससे ये चीज निकलती है कि नहीं निकलती है? 2 सफ़े नहीं, पीछे मिर्ज़ा जाना है अब साहब का आपने। क्यों अकीदा? जब मिर्ज़ा साहब का ये अकीदा ही नहीं कि नबी बंद मिर्जा है, साहब जब का ये कुरान ये अकीदा, कह ही अच्छा, नहीं रहा, मिर्जा साहब का, जब ये कुरान मिर्जा कह ही नहीं साहब रहा, का, कुरान कहता मिर्जा है, साहब की कुरान किताब, कहता आप मिर्जा है, साहब की कुरान किताबों को कहता है मानते हैं कि या नहीं मानते हैं? हम मिर्जा मानते साहब की हैं, किताबों मिर्जा को साहब की मानते भी हैं कि किताबों को नहीं? मानते हैं। मिर्जा साहब ने ये तो नहीं फिर लिखा मानना यहाँ पड़ेगा। पे। फिर मिर्जा साहब की मुझे किताबों ये को मानना बताएं, पड़ेगा, या ये बोल दें कि आपने मिर्जा कहा है साहब कि ने अपने आप अकीदे के ये खिलाफ साबित लिखा करना है। चाहते हैं कि मिर्जा साहब का ये आप अकीदा ये है, बोल दें, आप ये बोल आप दें कि ये आप साबित मिर्जा करना साहब के चाहते अकीदे हैं के कि मिर्जा खिलाफ, साहब मिर्जा का, साहब ने अपने अकीदे के खिलाफ यहाँ पर लिखा, आप ये बोलना चाहते हैं? मिर्जा साहब का मुझे ये बताएं कि मिर्जा साहब का ये अकीदा मिर्जा था साहब ने अपने अकीदे कि के अब खिलाफ नबी लिखा। नहीं आने। मिर्जा साहब ने अपने अकीदे के खिलाफ लिखा, पॉइंट नंबर 1। नहीं, दूसरी यहाँ पे चीज नहीं ये लिखा, है कि मैंने आपको यहाँ पे मुखातिब भी नहीं किया था, लिखा, सवाल सऊदी मिर्जा का था, साहब ने आपने यहाँ पे उड़ता नहीं हुआ लिखा। तीर लिया, लिहाजा अब आपको आप 2 जो सफ़े पीछे पढ़ना आप पड़ेगा। जो 352 से 355 आप पर जो जाएंगे, मान उसके बाद रहे हैं, देखेंगे कि जो आप इस्तदलाल मैंने किया था वो आप जो ठीक इसका उतरता है कि नहीं मतलब उतरता। निकाल रहे कि हैं आमिर मिर्जा साहब फरमा साहब, रहे इस उम्मत में नबी आप जो आने से इसका रहे, मतलब निकाल खुलाफाए रहे नबी हैं, आएंगे। आप जो इसका लिहाजा मतलब मलफूजात निकाल रहे हैं में वो पेज नहीं है। नंबर मिर्जा साहब ने ये नहीं लिखा। मलफूजात का 1906 का बात बयान यहाँ वफात से पर, 20 साल पहले का, जिसमें मिर्जा साहब फरमा रहे थे कि आखिर में अब खातिमुल आप खुलाफा बोलते आएंगे, रहे, जिनको वो इमाम महदी कहते हैं। आप पहले जिससे आप हमें बोलते पता रहे, चलता है कि जब आप मिर्जा बोल साहब जाएंगे ना को तो नबी फिर पाक मुझे सल्लल्लाहु अलैहि बताइएगा। वसल्लम का खलीफा कहते थे। अगर मिर्जा साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं, लिहाजा इस हद साबित होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्जा साहब भी ये मानते थे कोई रसूल और नबी नहीं होगा। सिंपल। आप बीच में कूदे थे, पेज नंबर 352 से जाना है, अमीन साहब बात होगी, वरना ऐसा रट्टा पड़ेगा कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देगी और आपको मानना पड़ेगा कि मिर्जा साहब ने या तो इस किताब के अंदर अपने अकीदे के खिलाफ लिखा है या मिर्जा साहब का अकीदा कुछ और था। मिर्जा साहब ने यहाँ पे अपने अकीदे के खिलाफ नहीं लिखा। मिर्जा साहब का मुझे ये बता दें आप कि मिर्जा साहब का ये अकीदा था। तो मिर्जा साहब ने कहा तजाद सिर्फ उस बंदे की बात में आता है या तो मजनून है या मुनाफिक है, खुशामदी के लिए। अच्छा आमिर साहब, वैसे बोलने में ना आप ना मंजर बेचा करें, बसों में ना मंजर बेचा करें, तो निकल गया आप बसों में ना मंजर बेचा करें, बोलने में बड़ी फास्ट है। सऊदी निकल गया, सऊदी ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, सऊदी ਨੂੰ पता सी ਇੱਥੇ दाल नहीं चलनी, दाल नहीं बिकनी। आप ना अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, बसों में मंजन बेचा करें, ठीक है? ये मंजन वहां पे चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। म्यूट हो गई जाए, बस ये हकीकत है अजीम भट्ट साहब, ये है हैसियत। ਅਮਰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 352 ਸਫਾ ਖੋਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹ पढ़ते ही नहीं पे। देखो जी अब्बास साहब, बात ये है, अब आमिर साहब जरा बात सुन ले, अब जरा तरीके से बात करें। अजीम भट्ट साहब मेरी बात सुनिए, दुहाई है अजीम भट्ट साहब, दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है, इंसाफ। भट्ट साहब, अब बात यह है कि सऊदी साहब के साथ इन्होंने हवाले के साथ बात की थी। अजीम भट्ट साहब देखें, अब बात ये इन्होंने कहा कि मेरे साथ बात करें, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने एक बात की है, इन्होंने कहा है पूरा करता होगा। मैं सिर्फ ये बात करने को अजीम भट्ट साहब इतने घंटे आमिर साहब आप अपनी बात देखें। आमिर साहब आप 2 मिनट ले लें, अपनी बात मुकम्मल कर लें, क्या कहना चाहते हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अजीम भट्ट साहब, सबसे पहले मैं ये नुक्ता रख दूं ताकि नए आने वालों को ये गलत फहमी ना हो कि मैं शायद को माहौल को ख़राब कर रहा हूँ। मैं बताता चलूँ, आपके साथ करीबन 1 घंटे से प्लस बात हुई है, ना मैंने आपको टोका ना आपने मुझे टोका, किसी किस्म की बदकलामी नहीं हुई।
अमीन साहब ने मुझसे सवाल पूछा, मैं इनका जवाब देके आगे चल पड़ा। सऊदी किंग साहब आए, उन्होंने कहा शहादतुल कुरान का जो हवाला पेश किया गया वो गलत किया गया, उनका हक बनता था। उन्होंने मुझे कहा 2 सफ़े पीछे पढ़ो। मैंने कहा आपकी खराबी है, आपको लगता है 2 सफ़े पीछे पढ़े, मैं उनके साथ चल रहा था। ये बार बार बीच में कूदे, इन्होंने बदतमीजी की, बद अखलाकी की और बदनज़मी का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे के अंदर मुझे फिर इस तरीके से बात करनी पड़ी। वरना मैं हक का कायल हूँ इस चीज़ का कि जो उसूल है उसके तहत बात की जाए। उसूली तौर पर ही अपना सवाल कर कर चलता बनते। सऊदी भाई की बात थी, उनको जब पता चला कि आमिर हक ते गिची नूं पै गया, उन्होंने फटाफट जान छुड़ा के निकलन दी की थी। अमीन साहब लगता है मुझसे अभी सही तरह वाकिफ नहीं थे, इनको लगा था कि इधर उधर ले जाऊंगा मैं। असल मसला ये है कि जब तक, अब मेरा मुतालबा सुन लें अजीम भट्ट साहब, जब तक सफ़ा नंबर 352 से 355 तक की पढ़ाई नहीं होगी, मसला निखर कर सामने नहीं आएगा। वो हवाला आपके सवाल पर मैंने पेश किया था, ना कि इनके। इन्होंने कहा वो हवाला गलत है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी 2 सफ़े पीछे पढ़ो। जो कहता है गलत है वो साबित करता है, लिहाजा अब आप साबित करें कि वो इस्तदलाल मेरा गलत था। पीछे जाएं, चलें जी 352 से दोबारा शुरू करेंगे 355 तक। अजीम भट्ट साहब मेरा मुतालबा ही है, अदरवाइज मैं इजाज़त लूँगा फिर। जी अमीन साहब, क्योंकि आपने खोला हुआ है तो मैं तो जी नहीं खोल सकता, तो क्या पढ़ना चाहेंगे? अगर पढ़ना जी चाहेंगे तो अब ठीक है, बात नहीं यह है चाहेंगे कि इनकी जो है ना सऊदी साहब से बात चल रही थी। उन्होंने कहा था 2 इबारतें जो है 2 पेज पीछे से पढ़े, ठीक है, उसको आप उधर से लेके आते हैं। अब इन्होंने कहा कि आपने बात करनी है, वो चले गए, उनका बीच में फ़ोन आ रहे थे, वो चले गए, ठीक है। अब बात यह है कि इन्होंने अगर मेरे साथ बात करनी है तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या मिर्ज़ा साहब का ये अकीदा था, मिर्ज़ा साहब इस बात पे एग्री थे कि अब नबी नहीं आने? मिर्ज़ा साहब तो इस बात पे एग्री नहीं थे। जब वो एग्री नहीं थे तो किताबों में से जो मफहूम ये बयान करना चाहते हैं वो तो सरासर गलत है, वो तो इनकी अपनी ज़हन की पैदावार है। मिर्ज़ा साहब ने तो ये अकीदा ही नहीं है। हाँ जी, मैंने बात सुन ली। अब बात सिर्फ इस तरह हो सकती है कि अगर आमिर हक साहब आपकी बात का जवाब देते हैं तो फिर बात आगे चलाएं। अगर वो नहीं देते तो फिर इस तरह हो सकता है कि फिर आप वो पढ़ दें, आप बता दें कि भाई कहाँ से इन्होंने गलत इस्तदलाल किया है उनकी किताब से। तो अगर आप भी नहीं वो करना चाहते तो फिर मेरा ख्याल फिर बात मैं और आमिर हक साहब आगे चलाते हैं, फिर आप दोनों की बात नहीं हो सकती। जी सबसे पहले तो ये मैंने जो बात की है कि मिर्ज़ा साहब का ये अकीदा था कि अब नबी नहीं आएंगे। जी आमिर हक साहब, अगर आप देना चाहें तो दे दें, नहीं देना चाहते तो जी कोई जी मसला जी मैं बात करने लगा हूँ। हाँ जी सबसे पहले ये समझना है, इस हवाले की गलती की निशानदही असल मसला था। जब मैंने कहा कि अगर इनको लगता है मेरा इस्तदलाल गलत है तो साबित करें गलत इस्तदलाल। ये पता क्या बात मेरे कर सवाल रहे का हैं? जवाब मिर्ज़ा नहीं है साहब का भट्ट जो साहब। अकीदा, भाई बीच में एक मुझे मिनट, मौका देना, मैं नहीं बोला आपकी बात में। उनको बोलने दे, फिर आप बोले। हाँ जी, देखिए करें भट्ट बात। साहब ये करते हैं, ये जिससे मछली मंडी बनती है। देखिए उन्होंने बात की, मैं बोला बीच में जब तक आपने इजाजत नहीं दी, ये है तरीकाकार गलत। और ऊपर से कहते हैं मुझे मॉडरेटर बनाओ ताकि मैं धक्केशाही कर सकूं। ऐसे नहीं चलता, इंसाफ का तकाजा पूरा करने होता है, तब लोग बैठ के सुनते भी हैं और बात इज्जत भी होती है। अच्छा वापस आते हैं। देखें असल मसला था वो ये था कि मैंने एक हवाला पेश किया 6 का 355, जिस पर तनकीद थी कि ये हवाला गलत पेश किया गया। अब हक तो ये था कि उस हवाले की गलती वादे की जाती, ना कि डबल स्टैंडर्ड वाली गेम की जाती, इधर उधर दौड़। क्या मिसाल के तौर पर ये कहना, क्या मिर्ज़ा साहब का अकीदा यही था? ओ अल्लाह के बंदो, क्या मिर्ज़ा साहब के अकीदों के अंदर शिफ्ट और ट्रांसफ़र नहीं आया? उन्होंने चेंज नहीं किए, तो फिर क्या माने? क्या माने? जब हम आपके सामने यही तो बात रखते हैं कि या तो फिर आप मानो कि मिर्ज़ा साहब में तजाद था। अगर आपको तजाद नहीं था और आप कहते हो कि जी हम बताएंगे उनका मफहूम क्या है, तो बताओ ना। यही तो मैं कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं मैं तो नबूवत का मुद्दा ही नहीं हूँ, बाद में कहते हैं मैं नबूवत का मुद्दा ही हूँ, जिसकी तशरीह आपने ये की कि वो कह रहे थे मैं शरई नहीं हूँ, यानी तशरीह नहीं हूँ, गैर तशरीह हूँ। हालांकि ये सारी की सारी बात रियाकुल कुलूब के बाद आई। मैं अभी इस बहस में नहीं जा रहा। वापस आते हैं अजीम भट्ट साहब, मैं बात को फैलाना नहीं चाहता, मैं हवाले इसी पे रखना चाहता हूँ, लिहाजा वापस आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर इनको लगता है कि जो मैंने इस्तदलाल इस इबारत से किया है वो गलत है, उसको इस इबारत से साबित करें कि मिर्ज़ा साहब ने यहाँ आगे पीछे उसकी कोई वजाहत पेश की हो। लिहाजा 352 सफ़े पर हम गए, वहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे थे, 55 तक आना था। 53 के ऊपर सऊदी साहब निकल गए, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ, अमीन साहब से बात करें। अमीन साहब कहते हैं हम ना पैरवी कैस ना फरहाद करेंगे, हम तर्द जुनून और ही ईजाद करेंगे। मिर्ज़ा साहब का अकीदा क्या था? मिर्ज़ा साहब का अकीदा अपनी इबारत के ख़िलाफ़ था, ये मेरा दावा है। अगर आपका नहीं था तो साबित करें कि इबारत का मफहूम क्या है, फिर यही तो दावा है। जी बहुत शुक्रिया अजीम भट्ट साहब, मुझे जवाब चाहिए। जी अपना अमीन साहब आपने उनका जवाब सुन लिया। अगर आप पढ़ना चाहते बात हैं, यह है कि मिर्ज़ा साहब का मेरा ये सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। तकरीर तो उन्होंने बहुत लंबी की है। मिर्ज़ा साहब का क्या, मेरा सवाल वही है कि क्या मिर्ज़ा साहब का ये था अकीदा कि अब नबी नहीं आएंगे? हाँ जी अमीन साहब, देखें अब जो जिन्होंने जवाब देना था ना उन्होंने दे दिया, अब इससे आगे मेरा ख्याल वो नहीं देंगे। वो कहते हैं कि अगर था तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने अपना अकीदा बदला।
تو اب آپ چلیں اگر ہم اس پھر ایسا کرتے ہیں اگر میری سیدھا میری بات اسی عبارت سنیں پہ آتے ہیں. ہاں امین مجھے صاحب، جواب دینے دینا ہاں جی. بات یہ ہے کہ اس عبارت پہ آئے، اگر انہوں نے غلط استدلال کیا تو وہ بتائیں ہمیں. جی امین جی صاحب. اب آتے ہیں ہم سیدھا اسی عبارت میں. آپ نے پیش کیا تھا 355 نمبر صفحہ، ٹھیک ہے. اب مجھے اس کی نشاندہی کروائیں کہ یہاں پہ آپ نے کہاں سے مرزا صاحب کا کہا ہے کہ مرزا صاحب کا یہ عقیدہ نہیں تھا، یہ بتائیں جی. یہ لگا دی میں نے. زبردست. اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوال کیا ہوا تھا. اب آپ مائک میوٹ کریں، مجھے پتا جلدی ہے، سے میوٹ آپ کر لیں، مجھے دوبارہ جلدی لگا سے دیں میوٹ کریں، تاکہ بیچ میں دوبارہ نہیں سے بولنا. اس کی جو ہے نا ہم کر عظیم لیں. بٹ صاحب میں مچھلی منڈی کا قائل نہیں ہوں، مچھلی منڈی کا قائل. ان کا مائک میوٹ کروائیں، یہ اپنی بار بات کر لیتے ہیں. میں خاموشی سنتا ہوں، مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہے. میوٹ کریں مائک. ہاں بیچ میں بولنا مجھے بھی آتا ہے بھائی، میں نہیں بولتا کیونکہ تقاضا ہے، جب ایک ہوسٹ موجود ہے اس کی عزت احترام بھی تو ہے نا. لیکن جی سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ یہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب اپنے عقیدے کے خلاف جناب، تو بٹ صاحب نے اس کی وضاحت کر دی. بٹ صاحب نے کہا کہ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کے داموں کے اندر شفٹ ہوا ہے. اگر حوالہ کہیں گے تو مطالبے پر حوالہ دے دیا جائے گا کہ مرزا صاحب نے کہاں کہاں کس کس عقیدے سے شفٹ کیا ہے. اب آ جاتا ہے واپس اس عبارت کے اوپر، شہادت القرآن والیوم 6 پیج 355 کے اوپر. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کیا میں نے اس حوالے کو اس لیے پیش کیا کہ مرزا صاحب اب کیا مان رہے ہیں، یا پہلے کیا مانتے تھے، یا تب کیا مانتے تھے. یہ حوالہ پتہ ہے کس کانٹیکس میں پیش کیا گیا تھا؟ یہ اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اس امت میں نبی آنے سے رہے، اب جو آئیں گے نا وہ خلفائے نبی ہوں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء. لہذا بٹ صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ امام مہدی یا دوسرے تیسرے کی پیشین گوئی جو ہے اس پر کیا معاملہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا مرزا غلام قادیانی صاحب ہمیں اس پر وضاحت کر چکے ہوئے ہیں. یہ تھا وہ دعویٰ. انہوں نے کہا حوالہ غلط دیا ہے. بھئی کدھر غلط دیا ہے؟ کیا مرزا صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ نبی اس امت میں آنے سے رہے؟ لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ پہلے کہو لکھا ہے کہ نہیں لکھا کہ مرزا صاحب نے کیا یہ نہیں کہا کہ نبی اس امت میں آنے سے رہے؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ اس امت میں نبی نہیں آئیں گے؟ مرزا صاحب پھر کون آئیں گے؟ مرزا صاحب نے کہا خلفائے نبی. یہی تو میں کہہ رہا تھا. تو حوالہ کہاں سے غلط ثابت ہوا؟ سب سے پہلے معافی مانگے سعودی. اگر سعودی نہیں ہے تو جو اس گفتگو کے اندر کودا ہے بھائی امین، ہمارا احمدی دوست امین بھائی کو چاہیے کہ یہ معذرت کریں کہ یار آپ کا حوالہ ٹھیک تھا. ہاں استدلال کے اوپر ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے مگر آپ کا حوالہ ٹھیک تھا. بات یہی لکھی ہوئی ہے جو آپ نے کہی تھی. اگر یہ بات کریں میں پھر نئے سرے سے بات کرنے کو تیار ہوں اور یہ بھی بتانے کو تیار ہوں کہ مرزا صاحب کا عقیدہ کیا تھا یہ الگ موضوع ہے. جی جناب بہت شکریہ. جی بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہاں سے اس کو لیا ہے، اس کی اگر ہم عبارت کو پڑھیں گے تو پھر ہم فیصلے پہ پہنچ سکیں گے. آپ نے یہ کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ حوالہ ٹھیک ہے. حوالے تو اپنی طرف سے آپ سارے ہی پیش کرتے ہیں مرزا صاحب کے تو آپ سارے حوالے پیش کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے، لیکن اس کا جو فہم ہے، جو مفہوم ہے، جو وہ بات کہنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، وہ تو پلے پڑتا نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی مسئلے کھڑا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، جیسے قرآن نے لکھا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. ٹھیک ہے، اتنے حصے پہ اگر ہم رہتے ہیں تو اس کا فیصلہ کر پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. لازماً ہمیں اسے مفہوم کو سمجھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کس کیٹیگری میں اور کیا سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، اب جو آپ نے یہاں پہ کی ہے وہ مجھے بتائیں یہاں پہ کون سی لائن پہ اس کو تاکہ پڑھا جائے اور اس الفاظ پہ غور کیے جائیں کہ مرزا صاحب یہاں پہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کیا نہیں سمجھانا چاہتے ہیں. جی کریں بات. ہاں جی میوٹ کر لیں. عظیم بٹ صاحب دیکھیں اتنا شور و غوغا مچایا ہے، پھر بات وہیں پر آئی ہے نا جو میں کہہ رہا تھا. کریں جی صفحہ 352 پہ جائیں اور 352 سے پڑھنا شروع کریں جو آپ کا سعودی بھائی جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرا حوالہ غلط تھا یا نہیں تھا. آپ نے پھر کہا کہ حوالے تو بڑے پیش کرتے ہیں مگر اس کا مفہوم نہیں سمجھتے. تو یہ دعویٰ آپ کا ہے نا. میں نے حوالہ پیش کیا جس چیز پر، کیا وہ چیز نکلی ہے کہ نہیں نکلی؟ صفحہ نمبر 355 پر یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا کہ نبی اس امت میں آنے سے رہے، اب اگر خلفائے نبی بھی نہ آویں اور وقتاً فوقتاً روحانی کرشمے یا روحانی نشان نہ دکھاویں تو اسلام کی روحانیت تو ختم ہو گئی ہے. کیا یہ بات لکھی ہے کہ نہیں لکھی؟ اس سے میرا یہ کہنا کہ نبی اس امت میں نہیں آئیں گے، مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں خلفائے نبی آئیں گے، کیا یہ میری بات غلط ہے؟ اگر آپ کہتے ہو غلط ہے ثابت کرو غلط نہیں ہے. وہ جملہ لکھا ہوا ہے، آنکھوں دیکھا، ریٹن آن دا وال جملہ لکھا ہوا ہے. آپ کیسے وضاحت کر سکتے ہو جی یہ جی 2 صفحے پیچھے تو پڑھو؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وضاحت آپ نے کرنی ہے نا تو کرو. وہ سعودی کر رہا تھا 2 لائنوں کے اندر وہ نکل گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے تو یہ رٹا رٹایا بولا تھا 2 صفحے پیچھے 2 آگے، یہ تو واقعی سیدھا ہو گیا جی. ہاں انہوں یہ نہیں سی پتا کہ انہوں سیریس لے لے گا 2 صفحے آگے پیچھے. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری احمدی دوستوں سے بات ہوتی ہے، جب بھی کوئی احمدی دوست ہمارے سامنے یہ کہتا ہے ہم اس سے 2 صفحے نہیں، ہم پچھلے 4-5 صفحے کھلواتے ہیں پھر کہ چلو پھر ان سے دے ہو جاؤ. آج تو بات کسی نے کہو گے نہیں، کم از کم ہمیں رکھنو نہیں کہو گے کہ 2 صفحے پیچھے 2 آگے. ہاں
یہ بات کہیں اور چلتی ہوگی. تو بہرحال عظیم بٹ صاحب، امین صاحب سے میرا مطالبہ ہے 352 سے شروع کریں، 355 پر آئیں، اپنے سعودی احمدی بھائی کا دفاع کریں اور یہ ثابت کریں کہ کیا عامر حق نے جو بات کی کیا وہ بات وہاں پر موجود ہے یا نہیں، کہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں نبی آنے سے رہے، یعنی نہیں آئیں گے، خلفائے نبی آئیں گے. یہ مرزا صاحب شہادت القرآن میں کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے؟ پبلک کو دکھائیں اور مفہوم وعدے کریں. جی اب آواز آ رہی ہے میری؟ اب جو انہوں نے یہ عبارت پڑھی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی تو اس امت میں آنے کو، یہی ہے آپ کی عبارت؟ ٹھیک ہے، جی وہ کہتے ہیں کہ نبی تو اس امت میں آنے کو رہے، اب اگر خلفا نبی بھی نہ آوے، خلفا نبی بھی نہ آوے، اس بات پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ خلفا نبی بھی نہ آوے اور وقتاً فوقتاً روحانی زندگی کرشمے نہ دکھاویں تو پھر اسلام کی روحانیت کا خاتمہ ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر خلفا نبی بھی نہ آوے، ٹھیک ہے، جس کا ذکر ہے کہ خلافت اعلیٰ مناج نبوت، کہ نبوت کے طریقے پہ خلفا آتے رہیں گے، ٹھیک ہے، نبی پہلے آئے گا پھر خلفا بھی آتے رہیں گے. اگر کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی نہ آئے تو وقتاً وفقتاً روحانی زندگی کے کرشمے نہ دکھاویں تو پھر اسلام کی روحانیت کا خاتمہ ہے. وہ تو یہ فرما رہے ہیں، آپ اس کو دوسری طرف سے لے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی بھی نہیں آنا، اب خلفا ہی آئیں گے، نبی نہیں آئیں گے. وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ بھی نہ آئے، اگر یہ بھی بند ہے سلسلہ، تو اسلام کی روحانیت کا خاتمہ تو بند ہے. اور پھر ایسے مذہب کو، موسوی مذہب کی روحانیت شوکت اور جلال سے نسبت ہی کیا؟ وہ کہتے ہیں روحانی شوکت اور جلال سے نسبت ہی کیا، جس میں ہزارہ روحانی خلیفے 1400 برس میں تک تو پیدا ہوتے رہے. اور افسوس ہے کہ ہمارے مرکتوز ذرا نہیں سوچتے کہ اس صورت میں اسلام اپنی روحانیت کے لحاظ سے بہت ہی ادنا ٹھہرا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو بہت ہی ادنا ٹھہرتا ہے اگر کوئی خلفۂ نبی نہ آوے تو ہمارے لیے تو یہ افسوس کا مقام ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب جی آنا ہی نہیں ہے. جی بول لو. ٹھیک ہے، آگے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا اور. وہ کہتے ہیں افسوس ہے کہ ہم ذرا نہیں سوچتے کہ اس صورت میں اسلام اپنی روحانیت کے لحاظ سے بہت ہی ادنا ٹھہرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ کچھ بہت بڑا نبی نہیں ثابت ہوتا، اور قرآن بھی کوئی ایسی کتاب نہیں ہوتی جو اپنی نورانیت میں قوی الاثر ہو. پھر یہ کہنا کہ یہ امت خیر المومنین ہے اور دوسری امتوں کے لیے ہمیشہ روحانی فائدہ پہنچانے والی ہے، اور یہ قرآن سب الہی کتابوں سے کی نسبت اپنے کمالات اور تفسیر وغیرہ میں اکم و آتم ہے، اور یہ رسول تمام رسولوں سے اپنی قوت قدسیہ اور تکمیل خلق میں اکمل و آتم ہے. کیسا بےہودہ اور بے معنی اور بے ثبوت دعویٰ ٹھہرے گا. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ بےہودہ معنی ٹھہرے گا. آپ کہتے ہیں کہ اب کوئی بھی نہیں آئے گا، نبی تو اس امت میں آنے کو رہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ نبی اب نہیں آنا اس امت میں یا خلفا نہیں آنے، تو یہ تو عقیدہ جو ہے وہ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو عقیدہ جو ہے وہ بہت ہی بےہودہ اور بے معنی اور بے ثبوت ٹھہرے گا. یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے عبارت یہاں پہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں 4 صفحے پیچھے یا 2 صفحے پیچھے آگے نہیں جاتا ہوں، میں صرف 4 لائنیں پیچھے آگے آتا ہوں. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے جو آپ نے عبارت پیش کی ہے، نبی تو اس امت میں آنے کو رہے اگر خلفا بھی نہ آوے اور وقتاً فوقتاً روحانی زندگی کے کرشمے نہ دکھاویں. یہ نہ کے لفظ پہ غور کریں ذرا کہ نہ دکھائیں، تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ تو عقیدہ بہت ہی بےہودہ وہ ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ تو ماننا ہی نہیں جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ آنا پڑے گا لازمی. امین صاحب میں جی آپ کو کریں، سلوٹ ایک کرتا منٹ ہوں. سعودی صاحب ایک منٹ ٹھہرے، آپ ذرا بات چلنے دیں، آپ بیچ میں نہیں بولنا آپ نے، ٹھہرے ذرا. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہے جی. وہ کہتے ہیں اب آگے بھی وہ پڑھتے کہتے تھوڑا ٹائم ہیں اور کہ لے لیں. بےہودہ اور بے معنی اور بے ثبوت دعویٰ ٹھہرے گا. ٹھیک ہے، اگر یہ عقیدہ سے چلتے ہیں کہ اب کوئی بھی نہیں آنا، میں تو اس بات سے یہ سمجھا ہوں. یہاں پہ تو وہ کہتے ہیں کہ آتے رہیں گے. آپ اگر سمجھتے ہیں تو آپ سمجھتے رہیں، آپ کسی کی سمجھ میں ہمیں کیا، ہمارا کام تو ہے پیغام پہنچانا. جی کریں بات. ہاں جی، بالکل ایک سوال کا جواب بس دے دیں، مائک ان میوٹ کر کے ہلکا سا. خلفائے نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک وہ کہہ جواب رہے دے ہیں دیں. خلفائے نبی کا مطلب خلفائے نبی ہی ہوتا ہے
खुलफाए होता है? नबी ना आवे, आपने ये बात पे गौर करें, वो कहते हैं नहीं, नहीं, अगर खुलफाए खुलफाए नबी का नबी मतलब भी पूछा ना है, आवे, वो दोबारा रिपीट ना करेंगे, मैं ना आवे। आपको कहता आपने हूँ कि 4 अगर 5 आप ये दवाई ना खाएं बस तो ठीक है, आपको आराम बस कैसे ठीक है, आएगा? माइक म्यूट कर लें, समझ आ गया मुझे, रटा नहीं पाना, माइक हाँ म्यूट जी, कर लें। जो आपको मैं जवाब ये मांगा था कहूँ कि वो अगर आपने आपको सलीके दवाई की ना तरह खाएं तो आपको सलीके आराम की तरह कैसे जवाब आएगा? देना चाहिए था आपको। चलो म्यूट कर लेना भाई, म्यूट करें, म्यूट करें, शाबाश। चलें, जो आपसे पूछा था वो तो आपने बताया, कोई नहीं, इधर उधर निकल गए। अफसोस इस चीज़ पर है कि मिर्ज़ा साहब जिस ज़ुबान के अंदर आए, अफसोस उनके मानने वालों को वो ज़ुबान तक नहीं पढ़नी आती। अब बुरा मत मानिएगा, अगर मानते हैं तो पब्लिक खुद फैसला कर लेगी। यकीन करें, इजाज़त नहीं है, वरना अहमद उप्पल साहब से भी मैं कहता, अहमद उप्पल साहब सच बताइएगा, मज़ा आया कि नहीं जो इबारत अमीन साहब ने इस्तदलाल के? यकीन करें दिल में तो मुस्कुरा रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं, अलाउ नहीं है इसलिए मैं उनसे इजाज़त नहीं लूँगा, रूल नहीं तोड़ता। अच्छा जी, सबसे पहली बात, कहते हैं जी मिर्ज़ा साहब इस अकीदे का रद्द कर रहे हैं। मिर्ज़ा साहब वो अकीदा पेश कर रहे हैं, जिस अकीदे का रद्द किया वो रद्द ऊपर है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं नबी तो इस उम्मत में आने को रहे। अच्छा, फिर मज़े की बात पता क्या, खुलफाए नबी मुज़ाफ इलैह है, इन्होंने सिफ्त मौसूफ बना दिया। उर्दू जुबान बात में आपने अभी फिर नहीं समझा, बीच में नहीं बोलना, बीच में बात मैं बोला आपने था, फिर नहीं बीच में नहीं समझी, बोलना, और बीच में नहीं हंसी और बोलना। ठट्ठे के साथ आप काम लेते हैं, ठीक है? म्यूट करें, म्यूट बात करें, आप फिर म्यूट नहीं करें। समझ अब रहे। आपको पता चल गया, आपकी उर्दू की पोल पट्टी भी खुल गया। म्यूट करें, ये ज्यादती है, म्यूट करें, ये बिल्कुल ज्यादती है। मैं बोला था, मैं नहीं बोल रहा था। खामोश हो जाए मेरा भाई, शोर नहीं डालना। मेरे ख्याल से अब अनम्यूट करके आप शोर इसलिए डालें क्योंकि आपको पता चल गया कि आपकी उर्दू का भी पोल खुल गया है। अकीदों का तो पोल क्या खुलना है, वो तो पब्लिक फैसला करेगी, वो मैं सख्त बात नहीं बोलता, मगर कम से कम इस चीज़ का खुल गया है कि जो ज़ुबान है ना, वो ज़ुबान भी नहीं आपको आती, अफसोस के साथ। हाँ, वो सऊदी ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, कम से कम ये रास्तों ना खुलता। अच्छा, खुलफाए नबी मुज़ाफ इलैह को सिफ्त मौसूफ बना दिया, यानी नबी खलीफा नबी, यानी ऐसे खलीफा जो नबी होंगे, ये मुराद ले रहे हैं। चेक करो ज़रा, खुलाफाए नबी मुज़ाफ इलैह, मतलब ये है नबी के खुलाफा। फिर साथ कहते हैं जी इससे पता चलता है खुलाफाए नबी से कि ये खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा है, कि पहले नबी आएगा फिर खलीफा आएंगे। वाह 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 तेरी करामत, वाह तेरी करामत। ओ भाई, पिछले सेंटेंस के अंदर साफ इनकार हो गया कि नबी नहीं आ रहा, तो फिर खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा कैसे कायम हो गई? इसका मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के सिलसिले से खिलाफत शुरू होगी, लिहाजा मिर्ज़ा साहब खलीफा तो कहला सकते हैं। अगर बहुत मैक्सिमम तो मिर्ज़ा साहब ये तो कह सकते हैं कि मैं खलीफा नबी हूँ, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा हूँ, ये दावा तो कर सकते हैं अपने इस अकीदे के मुताबिक। मगर ये कहना कि मिर्ज़ा साहब नबी हैं या रसूल हैं, इस इबारत के मुताबिक गलत हो जाएगा। यही तो बात है, वरना तो खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा साबित ही नहीं होगी। वरना ये मानना पड़ेगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और खुलफाए राशिदीन जितने भी हैं, वो सारे के सारे खुलफाए राशिदीन जो क़यामत तक आएंगे, वो सारे के सारे नबी होंगे। क्या ये मानते हैं? नहीं मानते। ठीक है, तो ये फ़र्क समझना है आपने। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने असल में 4 लाइनें इसलिए आगे पढ़ना गवारा की क्योंकि वो खुद समझना चाह रहे थे कि जो पीछे उन्होंने बोला है उसका तुकबंदी बन भी रही है कि नहीं बन रही। मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ, ये 4 लाइनें इन्होंने जो 356 की आगे पढ़ी है ना, सिर्फ इस शक और शुबे में पढ़ी हैं कि जो पीछे मैंने तुकबंदी की है, आगे उसका कुछ सिरा सर पैर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अफसोस से कहना अब पड़ता आपने है, टिचकियाँ भी लगानी है और आधा घंटा बात भी करनी है। भाई माइक म्यूट अब आपने आधा घंटा बात भी करनी है। आप लगा लेना टिचकरी भाई, अगर आपको टिचकरी लग रही है आप माइक म्यूट करें। ये ज्यादती वाली बात है ना, अगर आपको लग रहा है मैं टिचकरी लगा रहा हूं तो मैं टिचकरी तो नहीं लगा नहीं, रहा। भट्ट साहब आप मौजूद हैं? भट्ट साहब आप मौजूद है, पीछे गए हुए हैं आप। आमिर हक को मैंने बात नहीं करने देनी जी। अब बात यह है कि इन्होंने आधा घंटा अपना स्पीच देनी है मुझे, भाई मेरी या बात अब इस सुनिए, तरफ क्या भी बात आना हुई है? भाई आप बोलते, आपका मसाला अगर 2 मिनट में खत्म हो जाता तो मेरा कसूर है? मुझे बोलने दें भाई, पूरी बात करने दें। आप अपने पास मवाद रखें। आप तो अतम को अथम पढ़ रहे थे तो भाई छोड़ ਵੱਡੇ देना, ਕਹਿੰਦੇ फिर ਹੁੰਦੇ आपको ਸੀ बुरा ਗੱਲਾਂ क्यों ਦਾ लगता है? ਖਟਿਆ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ बस ठीक है, गल्लां दा खटिया खांदा है। तो मिर्जा साहब ने भी किताबां दा ही खादा, मेरे को होर कोई कुछ ना सुन लिया जाए, मैंने भारत टॉपिक ते रहन दियो। ठीक है, छोड़ें। मैं नहीं चाह रहा कि मैं भट्ट साहब के मौजूदगी के अंदर कोई ऐसी बात कहूँ, अफसोस के ਅੱਛਾ, साथ, ਭੱਜ वरना ਕੇ मुझे ਮਿਰਜ਼ਾ कहने में ਸਾਹਿਬ हर्ज ਦੇ नहीं है। ਤਰफ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। तो मैं भाई ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ छोड़ ਪਿਆ दें, ਮੈਂ मुझे बात ਮਿਰਜ਼ਾ करने दें ਸਾਹਿਬ भाई। ਦੇ ਉੱਤੇ क्यों? ਭੱਜ ਕੇ चले मेरी बात ਜਾਂਦੇ हो। सुने, बड़ी मेरी वैसे बात ना सुने, बड़ी गल मेरी बात कमाल सुने। नहीं हो गया। मैं तड़का नहीं लगाना चाह रहा, आप म्यूट रखें प्लीज़। खास तौर पर भट्ट साहब की ब्रॉड के ऊपर मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, प्लीज़ आपकी मेहरबानी। मौजू डिस्कस करने दें। आपको अगर टिचकरी लग रही है तो नहीं अपना मजाक बनवाना था ना, सऊदी ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁੱਦੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਟਿਸਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ठीक है ना? हाँ, उन रुक के करके सुनो भी नहीं सही ना, उन जर के खाओ। नबी तो इस उम्मत में आने को रहे। क्या मतलब है इसका? इस उम्मत में नबी नहीं आने। अच्छा, कौन आएंगे? अब अगर खुलफाए नबी यानी नबी के खुलफा होना पता क्या चाहिए था? अगर इनका इस्तदलाल होता, यहाँ से भी पकड़े गए हैं, इस्तदलाल होना चाहिए था खुलफाए अंबिया। ये जुमला होता ना तो भी बात अमीन साहब की ठीक होनी थी। अगर खुलफाए अंबिया होता तो इसका मतलब होना था नबियों की तर्ज पर जो खिलाफत अला में नाजिल हुई, यानी नबी आएंगे फिर खलीफा आएंगे, नबी आएंगे फिर खलीफा। ये बात भी नहीं है। खुलफाए नबी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में नबी तो आने से रहे। अब अल्लाह के रसूल चूंकि नबी हैं, उनके जो खलीफा होंगे ना वो आएंगे। ये बात मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं। इससे साफ तौर पर मेरा मुतालबा जो मैं रख या मेरा इस्तदलाल वो साफ तौर पर क्लियर हो रहा है। अच्छा, फिर 353 पेज के ऊपर जो पीछे तक से आग, ये कहते हैं 2 सफ़े पीछे, अफसोस से कहना पड़ता है सऊदी साहब को पढ़कर पता चल गया था इसलिए उस बात पर नहीं आए। पता है क्या लिखा हुआ है? 353 पेज पर आए। अगर आप 353 पेज पर आखिरी तीसरी लाइन पढ़नी है। अमीन साहब आपके सामने किताब खुली हुई है, खुदारा एक बार खोल के पढ़ लो ताकि ये ना कल को कहना कि मैंने बताया नहीं था, ये मैं गलत पढ़ रहा था। रूहानी खजान वॉल्यूम 6 पेज 353, 2 सफ़े पीछे, जो कि आपका मुतालबा है, उस पेज की आखिरी तीसरी लाइन। अमीन साहब ज़रा स्क्रीन पर लाए ना, सामने स्क्रीन पर लाएं ज़रा, सामने आपके सामने तो खुली हुई है ना, प्लीज़ अगर आप सच्चे हैं ना तो लाएं सामने। अब बात ये है लाएं, नहीं लाएं कि आपने जो इबारत पेश की है, करना पड़ेगा यार, आप इस तरह ना करें। अमीन साहब ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। आप मेरे कहने के ऊपर वो सामने लाएं ना। अगर आप मेरी आपकी जो इबारत है आपने इसका जवाब दे दिया। आपका ये अकीदा है कि अब उम्मत में, आपका ये अकीदा है कि अब उम्मत में नबी नहीं आने। मेरी बात सुन ले। अब मैंने आप आधा घंटा जो है ना, और मेरी बात सुने, मैं आप मुझे आपने नौकर नहीं रखा हुआ कि ऊपर कर लो अब नीचे कर लो। अब बात सुन ले मेरी, अब बात सुने ना मेरी। अब आधा घंटा भट्ट साहब ऐसे बात नहीं मैं कर सकूंगा, ऐसे मैं बात नहीं कर सकूंगा। मैं आधा घंटा, मुझे पूरा मौका मिला, मैंने आपसे मुतालबा किया था हवाले का। मैं आधा घंटा बात करने का मैं नहीं हूँ। मैं आधा घंटा बात करने का मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं आधा घंटा, मेरी बात सुने, मैं आधा घंटा बात नहीं करूंगा। अमीन साहब इन लोगों का ये जी करे। भट्ट साहब जरा देखें। अमीन साहब एक मिनट। बात यह है कि इस तरह बात पहले बहुत लंबी हो चुकी है, इस तरह बात आगे नहीं चलेगी। आमर साहब किसी दिन आप 2-3 दिन बाद बता दें, हम किसी दिन दोबारा कर लेते, फिर आप और मैं करेंगे फर्दर। बिल्कुल अजीम भट्ट साहब, मैं एग्री करता हूँ। सिर्फ एक इबारत मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ जो कि सियाक का तकाजा है, उसके बाद मैं खुद निकल जाऊंगा। बस ये मेरा आप खुद पढ़ के सुना देना, आप खुद पढ़ के सुना दें, आप लोग सुन लेंगे। ठीक है, आप खुद पढ़ के सुना दें। चले ठीक है, ऐसा करता हूँ। इन देखो कमाल चेक किया है उन्होंने, फटाफट कैमरे को ब्लैंक कर दिया है। हाय, जब अपनी बारी थी रख रहे थे। नहीं मिर्जा साहब, चलो आपका शौक भी पूरा कर देते हैं, आप पूरा कर देते हैं। बात ये है टिचकरियां लगानी ना, मुझसे बड़ा टिचकर कोई नहीं होगा। ठीक है आमर साहब, आप किसी पे लेखे में ना रहे, तू मुजस्सम टिचकर है, मुझे पता है। लेखे में मत रहे। मैं आपको ये बताऊं कि आप किसी पे लेखे में ना मत रहे। तेरे बड़े भलेखे च टुर गए ना, तेरी ऐसी की तैसी। ठीक है, ये आप किसी पे लेखे में ना रहे जो आप यही जिसमें जिसमें जिक्र किया गया है वो बताइए। आप बता रहे हो ना, सूरत फातिहा में लिखा हुआ है कि उनको चुका हुआ अल्लाह ने। एक मिनट देख लेते हैं इसमें। या दूसरी तरफ बात को क्यों घुमाते हैं? तो किस कहाँ लिखा हुआ है, यही तो पूछ रहा हूँ। कौन सी आयत में लिखा हुआ था? कौन सी आयत? जय इस्लामी भाई जरा आयत पढ़ के सुनाइएगा इनको जरा। बताओ जी, बताओ। सूरत निसा आयत नंबर 157। वमा हाँ, पढ़ो। क़तलूहु वमा स्वलबूहु, और ना उन्होंने क्या कत्ल मतलब है किया इसका? यहूदियों ने, और ना यानी अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के मुशाबे एक और बंदा भेजा। यार ये नहीं पूछ रहा कत्ल नहीं किया उनके मुशाबे, मैंने ये पूछ रहा हूँ कि अल्लाह ने किधर उठाया हुआ है, वो आयत पेश करो जो उठाया हुआ है। कत्ल नहीं। अल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अजीज़न हकीम। रफा के क्या मायने होते हैं? अपनी तरफ यानी आसमान